Assalamualaikum everyone. I am Ariba Tariq Lutfi and welcome to Santi's weekly broadcast, Nazariya, the Power of Experience. In Nazariya, we discuss about ophthalmologists' experiences and they share their experiences to you and to junior ophthalmologists so that they can learn from it and actually use that knowledge for their practice as well. So basically today I have a very well-known ophthalmologist of Pakistan. She is Dr. Samira Irfan. She is actually a qualified pediatric ophthalmologist, oculoplastic surgeon, and a neuro-ophthalmologist. She has a clinical and surgical experience of over 30 years, and she has received training in UK as well. And since then, she has been practicing as a consultant ophthalmologist. So I'm really honored that she is here on Nazariya, this platform, to share her experience. So Assalamu alaikum, Dr. Samira. How are you doing? And sorry, I'm sorry. Walaikum assalam ji. So nice to invite me, and it's wonderful to be here. Thank you so much, Dr. Samira. What do you have to say about experience sharing on this platform? I think it's wonderful, and this is a need of the hour. Everybody has Zoom, everybody has internet facility, and I think we continued highlighting important common problems in Pakistan, and I think it's good for all the doctors and the general public. So we need awareness and common problems, common issues. Yeah, so that's wonderful. Okay, so Dr. Samira, let's start with our conversation. Actually, we have already talked about this before as well. So we would like to talk about amblyopia today. So can you please tell us what is amblyopia and why is it called the lazy eye as well? Okay, so I mean, this discussion on amblyopia is extremely important as it's highly misunderstood. There are many misconceptions, which I think in the minds of not only the general public, but also the general ophthalmologists. And they all need to be aware what it is and how it's going to be treated, and is treatment really possible? So these three pertinent questions, they must be answered, and everybody must be very clear that what it is and how we are going to treat it, because it's a fully treatable visual loss. So when we talk about visual loss, the definition is perfectly normally formed. Structurally, the eye is normal, but it doesn't have function. So what does it mean? I mean, if a person has two arms, we are all, most of us are right-handed. And those right-handed people can only write with the right hand. Even if they try to write with the left hand, they cannot, because it's never been used. Though the structure is fully normal, but because we are used to writing with the right hand, since we are born, the right side of the body develops. Yes. And that development that leads to misuse or disuse of the left side, and we don't give a chance for it to develop. Structure to dono bazuon ka, dono haathon ka absolutely normal hai, but हमने use ही नहीं किया. So amblyopia भी ये है कि एक आंख structure दोनों eyes का normal है, एक आंख की vision 100% थी, दूसरी को diagnose ही नहीं हुआ, उसको वो treatment ही नहीं हुई और वो सो गई. So it's a lazy or a sleeping eye. It's not a dead eye. It can, और उसकी चूंकि dead नहीं है, उसकी vision हम कभी भी ठीक कर सकते हैं, provided we want to do it. But unfortunately, people think कि जी amblyopia एक certain age तक treat कर सकते हैं. Most ophthalmologists, they think they have this misconception कि 6 to 8 years या ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 11 years child that can be treated. उसके बाद वो सबको रिफ्यूज कर देते हैं ट्रीटमेंट. नहीं जी, इसकी तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, which is so unfortunate. और मैं आपको बताऊं कि प्रेवलेंस कितनी है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पे बच्चे उनकी विजन अर्लीस्ट पॉसिबल चेक होती है और उनको फॉरेन ग्लासेस दे दी जाती हैं. वहां पे प्रेवलेंस 5% है. 5 मीन्स आउट ऑफ एवरी 100 पॉपुलेशन ऑफ 100, 5 people are amblyopic in the West. और इमेजिन करें हमारी सोसाइटी जहाँ पे कोई चेक ही नहीं कराता, और वहां पे प्रेवलेंस कितनी हाई होगी. बच्चों की तो चेकअप ही नहीं होता है जनरली एज, और वो एक प्रॉब्लम चलता जाता है. बिकॉज हम कभी भी एक आंख बंद करके नहीं देखते. हमें नहीं पता होता एक आंख जो हमारी अच्छी आंख है, हम सिर्फ उसी से देख रहे हैं क्योंकि हम दोनों आंखें खोल के देखते हैं.
वी नेवर डू दिस कि हम चेक करें कि जी एक आई एम्ब्लायोपिक है या नहीं है और उसकी विजन कम है। अगर कम है तो हम जाएं आई स्पेशलिस्ट के पास और उसकी चेकअप कराएं। ऐसा होता ही नहीं है। एंड सो इट्स मिस्ड आउट बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स में और एम्ब्लायोपिया डीप 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 होता जाता है। जो विजुअल लॉस थोड़ा सा हो बिकॉज उसको ट्रीट ही नहीं किया जाता, डायग्नोज ही नहीं किया जाता, पता ही नहीं होता। मेरे पास आते हैं पेरेंट्स 30 इयर्स बच्चे एडल्ट लेके और 20 इयर्स, जब वो किसी इंटरव्यू में गए हैं उनकी मेडिकल असेसमेंट हुई है एंड दे फेल्ड, दे फ्लंक्ड द टेस्ट और फिर उन्हें सडनली पता चलता है कि जी इनकी तो विजन ही नहीं है एक आंख में, और फिर वो पैनिक क्रिएट हो जाता है। फिर वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, दूसरा, तीसरा, उन सबके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ये तो लाइलाज। एंड देन दे अल्टीमेटली फाउंड आउट कि जी एक इंसान है मी जो इसको ट्रीट कर रहा है एडल्ट एम्ब्लायोपिया। You would be surprised to know कि इस population in this whole region, Southeast Asia, Okay. I'm the only person who is treating adult amblyopia. Oh my God, that's No one such a else. huge thing to know that this is, you are the only person. This is actually मैंने I'm first the only person. मैंने खुद भी I have talked to a lot of ophthalmologists in the past year, and I have never heard कि इसकी इतनी prevalence है in this country as well, and I did not know कि आपने बहुत अच्छी तरह से concept actually बताया है कि हम सिर्फ दोनों आंखों से देखते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि ये वाली कमजोर है, ये वाली क्या है। So you are so right about this. It's actually shocking to know. So basically आपने ये बताया कि ये होता क्या है और general population में जो है वो कितनी frequently it can develop in children as well. So is it only seen in children या फिर वही जो बचपन में होती है वही adult phase में देखी जाती है? Absolutely. देखिए ये जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर नॉर्मल है, आपने एक आंख को यूज ही नहीं किया। अब से फॉर इंस्टेंस आपकी राइट आंख अच्छी है और खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाता है या कोई वजह कोई प्रॉब्लम हो जाता है कि 2-3 महीने 4 महीने ये आंख पे कोई बैंडेज रहती है या उसकी नजर या कैटरेक्ट आ गया, वो ऑपरेट नहीं हुआ आफ्टर इंजरी, या तो वो आंख फिर वो लेजी आई बन जाती है। 3-4 महीने एक आंख ना देखे उसकी विजन जो है ना जी वो नॉर्मल आई की बनिस्बत रिड्यूस हो जाती है। और वो जो रिड्यूस्ड विजन है 2-3 लाइनों का डिफरेंस है बिटवीन बोथ आईज, दैट इज कॉल्ड एम्ब्लायोपिया। सो इट कैन सेट इन, मेजॉरिटी आर बाय बर्थ जो कि अनडायग्नोज्ड नहीं होते और वो फिर एडल्ट लाइफ में चले जाते हैं। ओके, बट इट कैन हैपन एट एनी एज अगर 3-4 महीने एक आंख की विजन समहाउ ब्लॉक्ड हो गई। इट्स द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर कोई मसल जैसे कुछ लोगों के फ्रैक्चर हो जाता है तो काफी अर्से वर्क नहीं करती तो एट्रोफी हो जाती है, तो वो पाँव और या हाथ या कोई एरिया जो है वो काफी वो दिख जाता है कि यार इट्स नॉट वर्किंग, ये मसल वर्क नहीं करिए। सो दैट इज ट्रू कि हम ये सोचते नहीं है कि कभी भी डेवलप हो सकता है फॉर एनी स्टेज ऑफ लाइफ। सो अच्छा, so how we were talking about diagnosis, so how is it diagnosed? Can you please explain थोड़ा ज्यादा इसके बारे में? आज ही मतलब सब लोग जाके अगर आप एक आंख आप दूर देखें 20 feet and cover with one eye, okay, and then you see with the other eye. अगर आपको लगे कि जी इस दोनों आईज में डिफरेंस है then it means कि उस आई की विजन कम है and then you should see an eye specialist. अगर तो उसमें ऐनक चाहिए होगी तो वो ग्लासेस से फौरन ठीक हो जाएगा अगर एम्ब्लायोपिया नहीं है। ओके, और अगर ग्लासेस भी आपको मिली हैं और उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रही नजर उसकी, मीन्स कि जी गड़बड़ है। अगर खाली ऐनक का कसूर होगा तो उसी वक्त उसकी विजन क्लियर हो जानी चाहिए आफ्टर पर्सन वियर्स द ग्लासेस। उसमें कोई हाई फाई टेस्ट नहीं है। ओके, और टेस्टिंग में ये है कि सिर्फ आई स्पेशलिस्ट ने देखना है कि पूरी आंख का स्ट्रक्चर ठीक है। इट्स नॉर्मली फॉर्म्ड आई। नॉर्मली फॉर्म्ड मीन्स के कॉर्निया ठीक है, लेंस ठीक है, और पीछे रेटिना जो है, जो हमारा मैक्यूला होता है, जो सेंटर ऑफ द आई विच इज कॉल्ड फोविया, दिस इज वर्किंग परफेक्टली नॉर्मल। ऑप्टिक नर्व जिससे हम देखते हैं वो परफेक्टली नॉर्मल है। सो सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है कि जी सब सही है। कोई खास टेस्ट जो है लंबे चौड़े करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, and then you can just make the diagnosis and start treatment. So it's a structural issue, and इसके अलावा जो है an ophthalmologist I'm sure they can diagnose it pretty easily.
That's what you are Absolutely. saying. Okay, that's great. Okay, so if a person is diagnosed and they are diagnosed with amblyopia, so how should they be treated, and how should an ophthalmologist approach that? जी, डायग्नोसिस के बाद यू हैव टू सी कि जी उसको ग्लासेस का नंबर उसके है कि नहीं है। जितने जी अबाउट 70 to 80% जो कॉजेज है एम्ब्लायोपिया की, उसमें यही है कि एक आंख में ऐनक का नंबर ज्यादा होता है बाय बर्थ, थोड़ा सा फर्क होता है दोनों आंखों में, और फिर वो ट्रीट नहीं होती, वो नंबर बढ़ता जाता है। Okay. क्योंकि वो अगर एक हम अर्ली ग्लासेस दें किसी बच्चे को जिसकी दोनों आंखों में प्रॉब्लम है, तो वो नंबर जो है वो वहीं रुक जाता है, बढ़ता नहीं है। Okay. If you take care of your eyes, posture सही हो, पढ़ना लिखने का तरीका सही हो, जो नंबर ऑफ ग्लासेस जो बढ़ रहे हैं ना, इट्स ऑल posture related, bad posture related, क्योंकि बच्चे झुक के पढ़ते हैं, लेट के पढ़ते हैं, प्रॉपर रोशनी नहीं होती है, अंधेरे कमरे में पढ़ रहे हैं, उस वजह से ग्लासेस का नंबर बढ़ता जाता है। मूवमेंट की वजह से भी होता है जी, कॉन्स्टेंटली जो बच्चे पढ़ते हुए मूव करते हैं उनकी, उसकी वजह से भी होता है। देखिए आई स्ट्रेन जिस चीज से भी हो रहा है, आप मूविंग गाड़ी में नहीं पढ़ सकते, चल रही जो है, वो मूवमेंट की वजह से सर में दर्द थोड़ी देर में शुरू हो जाता है, एंड व्हाई, बिकॉज वो मूवमेंट से आपकी विजन ऐसे ऐसे हो रही है, तो आई स्ट्रेन करता है। तो अब इमेजिन करें एक बच्चा जिसकी एक आंख में कोई ऐनक का नंबर नहीं है, दूसरा अनडायग्नोज था और उसको ऐनक का नंबर नहीं दिया गया, अब वो उसी आंख से एक आंख से पढ़ता जा रहा है, तो दूसरी आंख क्या करेगी, वो सो जाएगी, ब्रेन उसको सुला देगा, बिकॉज हमारी दोनों आंखें जो है ब्रेन से कनेक्टेड हैं अलग अलग से। जो आंख लेजी आई है उसके ब्रेन कनेक्शन सो जाएंगे, और जो है उसका जो ऐनक का नंबर भी है वो भी बढ़ता जाएगा। तो दूसरी अच्छी आंख है वो यूज हो रही है, और अल्टीमेटली उसमें भी ऐनक का नंबर आ जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली यूज हो रही है। और उसके बाद जो डायग्नोसिस तो हमने कर लिया, ट्रीटमेंट क्या है जी, कि ट्रीटमेंट नंबर 1 उसको ग्लासेस दें जो भी उसका नंबर है। अच्छा, जो 50% या 30% विजुअल लॉस है वो सिर्फ ऐनक देने से रिकवर हो जाता है, और उस पेशेंट को, बच्चा है या एडल्ट है, ऐनक देने के बाद आफ्टर 6 वीक्स या 2 मंथ्स दोबारा चेक किया जाता है कि जी खाली ऐनक देने से कितनी विजुअल इंप्रूवमेंट हुई है। अगर तो 100% हो गई है, एम्ब्लायोपिया माइल्ड था, तो 100% भी हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको फिर एम्ब्लायोपिया नहीं कहेंगे, उसको यही था कि जी ऐनक चाहिए थे पैसे। लेकिन पेशेंट आता है आफ्टर 6 वीक्स और 2 मंथ्स ऐनक पहनने के साथ, रेगुलर ऐनक पहनी है, और विजुअल लॉस वहीं का वहीं है, या थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू गुड आई वो बहुत ज्यादा है, तो फिर हमने अच्छी आंख को पैच करना है। पैच का मतलब है कि जी आपने अच्छी आंख की विजन ब्लॉक कर देनी है ताकि ब्रेन की सारी एनर्जी खराब आंख के ऊपर फोकस हो जाए। इट्स जस्ट लाइक आप राइट हैंडेड हैं, सारी उम्र राइट हैंडेड काम किया है, अब खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो गया या कोई इंजरी होगी राइट हैंड से, आप नहीं लिख सकते, ठीक है, आप अगले दिन लेफ्ट हैंड से काम करेंगे, पहले दिन मुश्किल होगा, दूसरे दिन मुश्किल होगा, आहिस्ता आहिस्ता जितना आप लेफ्ट हैंड से काम करेंगे, ये हाथ एक माह में उतना ही अच्छा लिखना पड़ शुरू हो जाएगा जितना आप राइट से लिखती थी। लेकिन अगर आप राइट लेफ्ट दोनों यूज करती रहें, अब ब्रेन तो जब से बच्चा पैदा हुआ है राइट हैंड से हम कर रहे हैं काम, तो ऑफ कोर्स वो लेफ्ट हैंड इतना बेहतर होगा ही नहीं अगर आप दोनों यूज कर रहे हैं पार्ट टाइम। तब डॉक्टर्स गलती क्या करते हैं कि जी पार्ट टाइम पैचिंग एडवाइस करते हैं कि जी 2-3 घंटे या 6 घंटे के लिए एक आंख को आप बंद कर दें, अच्छी आंख को, ताकि खराब आंख काम करे। लेकिन जैसे ही पैच उतरता है, ब्रेन तो ऑलरेडी इस आंख का डेवलप्ड है ना, वो ब्रेन की एनर्जी सारी इसी पे दोबारा फोकस हो जाती है, और जो खराब आंख की थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई होती है उस दिन के लिए 0 पे चली जाती है। एंड दैट इज व्हाई वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं कि जी एम्ब्लायोपिया इन एडल्ट एज ठीक ही नहीं हो सकता। इट्स बिकॉज कि आप वो कर गलत रहे हैं।
Yes. अगर वो पक्का पक्का इस आंख को बंद कर दें, जैसे कि हम्म, आपने पक्का राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया, उसको ब्लॉक कर दिया, और हम्म, लेफ्ट हैंड से रोजाना लिखें, यू विल बी परफेक्ट. yes. Agreed. Oh, this is actually a mind opening for a lot of people, I'm assuming, myself included, कि इस तरह से ट्रीटमेंट आप इसका स्टार्ट कर सकते हैं. सो आप इसके अलावा व्हाट आर द वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड व्हाट अबाउट द कॉस्ट एंड क्योंकि इकोनॉमिकली जो है वो पाकिस्तान में जो है वो काफी चीजों पर अब फोकस. देखिए, जितना भी हाँ जी, जितना भी लेट एम्ब्लायोपिया डायग्नोज होता है, जो विजुअल लॉस है एक आंख का, वो उतना ही सिवियर हो जाता है. अब एक सिवियर विजुअल लॉस में अगर आप, जो नेक्स्ट ऑप्शन है पैचिंग के अलावा, वो है कि फॉगिंग, ऐनक दें जिसमें कि वो उसका शीशा जो है उसको ब्लर कर दिया जाए, बिल्कुल ओपेक कर दिया जाए, या शीशे के ऊपर टेप लगा दी जाए कि वो अच्छी आंख में से ना देख सके. अब प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे यार वो तो बड़े स्मार्ट है, वो ऐनक को नीचे करते हैं और ऊपर से अच्छी आंख से देख रहे होते हैं. सो फॉगिंग डजंट वर्क, क्योंकि उसमें कोई कंट्रोल नहीं है. अब इट्स जस्ट नॉर्मल कि जी एक इंसान है, उसकी एक अच्छी आंख है, आप उसको बंद करना चाह रहे हैं, दूसरी में जीरो विजन है, तो वो एक बच्चा या इवन यंग एडल्ट टीनेजर है, वो क्यों खराब आंख को बंद करेगा जब आप नहीं देख रहे? उसे ऐनक नीचे करनी है, अपना काम शुरू कर देना है. तो दैट फेल्स. फिर तीसरी एक चीज है जी एट्रोपिन आई ड्रॉप्स. डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि जी अच्छी आंख में एट्रोपिन आई ड्रॉप्स डाल दें, क्योंकि उससे प्यूपिल डायलेट हो जाता है और विजन ब्लर्ड हो जाती है. लेकिन वो एक अच्छी आंख है. मैं रिमेम्बर, अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो 6-8 माह एट्रोपिन डाल के आए होते हैं, फिर भी उनकी अच्छी आंख की विजन एम्ब्लायोपिक आंख से बेहतर होती है. ओके, ये मतलब it is not that effective. So what are the effective options of treatment जो आपको लगता है? इफेक्टिव एंड द ओनली ऑप्शन इज कि अच्छी आंख का विजन आप ब्लॉक करें फॉर द नेक्स्ट 2 months, 1 to 2 months. Okay. और खराब आंख के साथ यू हैव टू रीड एंड राइट. दैट चाइल्ड मस्ट रीड एंड राइट. अच्छा, अब ये क्यों? अब डॉक्टर्स जो है मोस्टली 99% डॉक्टर्स दे आर रिकमेंडिंग कि जी आप गैजेट्स लें, सेलफोन, स्मार्टफोन, उस पर कंप्यूटर गेम्स खेलें. अब जब आप गेम खेल रहे हैं तो आप सिर्फ अपने फिंगर्स और अपनी आंख जो है ना, सिर्फ जो देख रही है सिग्नल, वो यूज कर रहे हैं. व्हाट दे फॉरगेट कि एम्ब्लायोपिया पूरा दिमाग का प्रॉब्लम है. इट्स अ ग्लोबल ब्रेन प्रॉब्लम, कि पूरी आंख के जो कनेक्शंस हैं वो पूरे ब्रेन के साथ हैं. विजन जो है ना जी, हम एक चीज देखते हैं तो आंख ने सिर्फ ट्रांसमिट करने हैं वो सिग्नल्स देखने के कि जी ये एक पेन है. ओके, इस पेन के सिग्नल दिमाग आंख तक चले गए, आंख से दिमाग तक कि जी ये एक पेन है. अब ये पेन करता क्या है, इसका कलर क्या है, ये कितनी इसकी लेंथ है, कितनी विड्थ है, ये सारी इंफॉर्मेशन पूरे ब्रेन के लिंक है. Yes. और इस पेन को मैंने करना क्या है, यूज क्या है इसका, वो भी हमारा फ्रंट का जो दिमाग है, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां जा रही है. उसने फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स ने ऑर्डर करना है ब्रेन को कि जी इससे मैंने लिखना है. तो वो जो लिखने का ऑर्डर है उसमें सारा दिमाग हमारा यूज हो रहा है. तो सिर्फ एक चीज बच्चे को दिखाने से आंख नहीं जिंदा हो जाएगी, हमने पूरे ब्रेन को वर्क करना है. एंड दैट वर्क इज बाय रीडिंग एंड राइटिंग, ताकि उसमें मेमोरी इन्वॉल्व हो, पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हो, उस सोचना समझना इन्वॉल्व हो. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो इलाज This is beautiful, the way you have explained कि पूरी ब्रेन के फंक्शन जो है वो एक्चुअली यूटिलाइज होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स एक आंख जो है वो फुली फंक्शन नहीं कर रही है, तो सारे फंक्शंस ऑफ कोर्स उसको यूटिलाइज करवाने पड़ेंगे. सिर्फ एक से जरूर एक चीज से नहीं हो सकता. आई एम सो सॉरी, आप कंटिन्यू करें, आप अपनी बात जो बता रही थी ट्रीटमेंट से रिलेटेड. मैं गई थी. सो इलाज के जो है ना, अगर आप इलाज वाकई अपने पेशेंट्स का करना चाहते हैं सिंसियरली, देखिए एक एडल्ट है 20 साल का, 25 साल का, 30 का. मेरे पास एक नानी आती थी अपने नवाजे को लेके, और वो एम्ब्लायोपिक था. नानी ने कहा मैं भी एम्ब्लायोपिक हूँ. शी वाज 56. तो कहती है मैं ठीक हो सकती हूँ. मैंने कहा व्हाई नॉट. और वो नवासे के साथ उन्होंने पैचिंग शुरू की अपनी, और वो दोनों ठीक हो गए. वो भी ठीक हो गया, नानी भी ठीक हो गई. वाओ, So,
कोई नहीं है। इलाज के लिए दो चीजें हैं, यू हैव टू ब्लॉक द गुड आई ताकि ब्रेन सारी एनर्जी खराब आई पे फोकस करे, और फिर जो दूसरा हिस्सा ये है कि इसका एक्टिव यूज खराब आई का। एक्टिव यूज कैसे है? बाय रीडिंग एंड राइटिंग एटलीस्ट 5 to 6 hours पर डे। सिर्फ 1 घंटा करेंगे वो 6 माह या साल लग जाएगा। अगर आप 6 घंटे करेंगे इन 2 months, एक जो डीप विजुअल लॉस है दैट कैन बी रिकवर्ड। तो वो प्रॉब्लम ये होता है कि एक आंख जिसमें जीरो नजर है उसको बड़ा बड़ा फॉन्ट नजर आता है। सो व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स कि जी आपको जो फॉन्ट इस टाइम विजिबल है, जैसे अखबार की हेडलाइंस होती हैं, यू स्टार्ट रीडिंग द हेडलाइंस, और जो पढ़ रहे हैं डे 1 पे उसको लिखें आप। फिर वो हेडलाइन से जो फॉन्ट है उससे नेक्स्ट वाला आप 2-3 दिन बाद उस पे चले जाएं, एंड देन 3-4 दिन बाद उससे छोटा। By the time it's 1 or 2 weeks, they can read the fine print if they do this. और फिर जो पहले क्रीप की नजर इंप्रूव होती है, and then the distant vision also starts improving. So शर्त अगर आप चाहते हैं कि जी 2 महीने में आंख आप ठीक कर लें, तो you have to not see with the good eye or do reading and writing 6 hours daily. और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाता है सब। आप बट ये पेशेंट से करवाना मुश्किल ये है, करवाना बहुत मुश्किल है। पेशेंट्स जो है वो कंप्लायंस जो है वो बहुत इशू आता होगा आई एम श्योर, कि वो किस तरह वो कर भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, वो चोरी तो नहीं कर रहे हैं कि वो एक दोनों आंखों से देख रहे हैं, तो ये आपको इंश्योरिटी बहुत डिफिकल्ट होती होगी आई एम श्योर। एंड सिंस यू हैव मेंशन कि वो ठीक हो जाता है, so basically reversal is possible, that you are saying कि reversal possible है, और ऐसे patients हैं जिनको आपने completely recover करवा दिया है। जी रिवर्सल इसलिए पॉसिबल है कि एक आंख में ऐनक का नंबर 0 है, दूसरी आंख में से 5, 6, 7 है, और वो ऐनक वो कहते समझते हैं कि जी मेरी आंख बिल्कुल ठीक हो गई है, उसने 2 महीने ऐनक नहीं पहनी, वो विजन वापस हो जाएगी। सो ऐनक उनको पहननी है। अगर उनकी आंख में स्क्विंट है, जो भी आंख नहीं देखती ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से कि वो आंख घूम जाती है बाहर की तरफ, उसमें स्क्विंटिंग हो जाती है। सो एक आंख जिसमें नजर है वो सीधी रहती है, दोनों आंखों में नजर है वो दोनों सीधी रहेंगी, उन्होंने इकट्ठे मूव करना है इन एवरी डायरेक्शन। लेकिन अगर एक आंख में नजर नहीं है, वो ऐसा ऐसा बाहर घूम मूव कर जाएगी। अब जब पैचिंग हुई है पेशेंट की, तो वो आंख जैसे ही पैच लगा हुआ है, एक दूसरी आंख सीधी हो गई, और इसीलिए वो देख भी रही है और उसकी विजन भी इंप्रूव हो रही है। जैसे ही पैच उतरेगा वो आंख महंगी हो जाएगी और फिर विजन वापस हो जाएगी अगर उस पेशेंट की सर्जरी नहीं हुई। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनकी महंगापन भी है विद एम्ब्लायोपिया जो कि होता है, तो उनको फिर जैसे ही एम्ब्लायोपिया ठीक किया है उनकी सर्जरी हो जानी चाहिए, ताकि आंखें दोनों सीधी हो और परमानेंटली वो देखें और सही रहे। That's how it is. Okay, thank you so much, डॉक्टर समीरा, आपने काफी सिंपली और सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया है, एंड आई थिंक जितनी इम्पोर्टेंस आपने इस टॉपिक की बताई है, इट इज एक्चुअली दैट इम्पोर्टेंट, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट दिस। एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपने डिस्कस किए, डायग्नोसिस डिस्कस किया है, सो दिस वुड बी आई थिंक अ लर्निंग, huge learning and a valuable learning for a lot of ophthalmologists and your junior ophthalmologists as well. So lastly, I would just like to thank you for coming here, and आपका कोई last comment या कोई last anything that you want to share with us, and then we can wrap up the session. Absolutely, Jay. Aman, I'm so grateful you covered this subject because it's so much common. This problem is extremely common. I told you कि जी बाहर 5% है, तो यहाँ पे तो 10 या 20% है, because it's missed, it's undiagnosed. एंड पीपल आर रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स रिफ्यूज कर रहे हैं। तो आप सोचें कि जी पूरी पॉपुलेशन में 20 करोड़ में कितने हमारे पेशेंट एम्ब्लायोपिक हैं और कितना वॉल्यूम है पेशेंट्स का। अब अनफॉर्चुनेटली दीज आर यंग पीपल। अब वो उन यंग पीपल को जब वो जाते हैं इंटरव्यूज पे, दे आर नॉट अलाउड इनटू आर्मी, दे कैन नॉट बी पायलट्स, दे कैन नॉट बी ड्राइवर्स, हैवी जो ट्रक्स वगैरह चलाते हैं, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, जितने इवन डॉक्टर्स जो हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर्स जो हैं, लैब वर्कर्स हैं, जिन्होंने पैथोलॉजिस्ट हैं,
इवन आई स्पेशलिस्ट, दोनों आंखें हमने माइक्रोस्कोप यूज करना है दोनों आंखों से। तो इतने सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें कि उन बच्चों को अलाउड ही नहीं है कि जी वो उसमें एंटर करें। तो आप सोचें जिनकी लेजी आई है उनके लिए प्रोफेशंस कितने लिमिटेड हो जाते हैं टू एंटर इनटू। और जब वो फिर एंट्री टेस्ट में वो मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल होते हैं, देन दे कम टू मी कि जी डॉक्टर जल्दी से आंख हमारी ठीक करते हैं। सो इम्पोर्टेंट मैसेज इज कि इट इज ट्रीटेबल, इट इज पॉसिबल टू ट्रीट इट। आज ही सारे जो डॉक्टर्स भी हैं और पेशेंट्स भी हैं, अपनी जाके एक आंख बंद करें और दूर देखें कि जी किस आंख में विजन कम है, एंड देन यू get it treated, and you need to know कि जी it is treatable at any age. So I'm here. Fortunate for you that I left England after 20 years. I moved back here. And I'm doing this job for the last 10 years. But unfortunately, doctors की में भी awareness नहीं है. They don't refer patients. और patients वैसे ही neglect होते जाते हैं बेचारे. Which it can be treatable. और surgery जो जिनकी squint हो जाती है, वो doctors they do the squint surgery without improving the vision first. तो उससे क्या होता है कि एक महीना तो आंख सीधी रही with surgery, वो वापस चली गई. And that is so bad. Yes, it's a waste of everything, effort, money, everything. And I agree. आप बिल्कुल, मुझे पहली दफा I think ये हम awareness topic अपने platform पे भी discuss कर रहे हैं, और and it's a huge thing, and I'm sure it's going to be successful thing. हम इसको we are going to spread this information as much as we can and however we can. Thank you so much, Dr. Samira, for your time. आपने मुझे इतना time दिया, इतना अच्छी तरह से आपने हमें ये explain किया, अपना experience share किया. So thank you for coming here and thank you for gracing us with your presence. Thank you so much. I'm so grateful. Thanks, Nazariya Pakistan. Allah Hafiz. Thank you. Okay, Khuda Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.